ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ, ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ. ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ, ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ. ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ, ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ. ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ, ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ. ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ, ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ. ಡಮರುಗುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೂದಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಿದು, ಡಮರುಗುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೂದಿಯ ಮೈ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಕಾಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬಂದಾನ ಮಹಾದೇವ, ಮಹಾದೇವ ಬಂದಾನ. ಡಮರುಗುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೂದಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಿದು, ಡಮರುಗುವ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬೂದಿಯ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಳಿದು, ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಂದಾನ. ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಮಹಾದೇವ. ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ, ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ. ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು, ಬಂದನು ಬಂದನು ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ, ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ. ಗಂಗೆಯನ್ನು ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಚಂದಿರನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಚಂದಿರನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಚಂದಿರನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು, ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಚಂದಿರನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು, ಸರ್ಪವನ್ನು ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ ಬಂದಾನ ಮಹಾದೇವ, ಮಹಾದೇವ ಬಂದಾನ. ಗಂಗೆಯನ್ನು ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಚಂದಿರನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು, ಗಂಗೆಯನ್ನು ಜಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಚಂದಿರನ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಮುಡಿದು,
ಬಾಧೆಯ ಕಳೆದು ಬಕುತಾರ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಲೋಕದ ಬಾಧೆಯ ಕಳೆದು ಬಕುತಾರ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಮುಗುತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು ಬಂದ ನಾಮದೇವ ಲೋಕದ ಬಾಧೆಯ ಕಳೆದು ಬಕುತಾರ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಲೋಕದ ಬಾಧೆಯ ಕಳೆದು ಬಕುತಾರ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಮುಗುತಿಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಲು ಬಂದ ನಾಮದೇವ ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು 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 ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು 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 ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು 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 ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು 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 ಮಹಾದೇವ ಬಂದನು ಬಂದನು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು 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 ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದನು 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 ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ ಮಹಾದೇವ ಬಂದನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ದಾಟಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾದೆ ನಿಂತು ಬೆಟ್ಟಗಳ ದಾಟಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾದೆ ನಿಂತು ಯೋಗವ ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಯೋಗೀಶ ಈ ಮಾದೇವ ಬೆಟ್ಟಗಳ ದಾಟಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾದೆ ನಿಂತು ಬೆಟ್ಟಗಳ ದಾಟಿ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಾದೆ ನಿಂತು
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. Let's go! हे डम 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 डमरुवाला पार्वतीपती कैलासवाला डम 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 डमरुवाला पार्वतीपती कैलासवाला शरण आलो तुला हो दर्शन दे रे मला महादेवा शरण आलो तुला हो दर्शन दे रे मला हे शंभो शंकरा देवांच्या देवा नंदीवर बसून डवलत आला शंभो शंकरा देवांच्या देवा नंदीवर बसून डवलत आला नंदीश्वरा गोंधळ घालू तुझा दर्शन दे रे मला हे नंदीश्वरा गोंधळ घालू तुझा दर्शन दे रे मला शंभो हे भोळ्या शंकरा भोळ्या शंकरा तुझाच लळा विसरू लावतो संसार सारा भोळ्या शंकरा तुझाच लळा विसरू लावतो संसार सारा महादेवा जीवाचा गुंतला हो दर्शन दे रे मला हे महादेवा
विसरू लावतो संसार सारा भोळ्या शंकरा तुझाच लळा विसरू लावतो संसार सारा महादेवा जीव असा गुंतला न दर्शन दे रे मला हे महादेवा जीव असा गुंतला न दर्शन दे रे मला हे महादेवा जीव असा गुंतला हो दर्शन दे रे मला महादेवा जीव असा गुंतला हो दर्शन दे रे मला दारुण ले रे मला दारुण ले रे मला दारुण ले रे मला जीव असा गुंतला न दर्शन दे रे मला महादेवा जीव असा गुंतला न दर्शन दे रे मला महादेवा जीव असा गुंतला न दर्शन दे रे मला महादेवा जीव असा गुंतला हो दर्शन दे रे मला If this mind is taking instructions from you, it is the greatest miracle on the planet. We are launching the Miracle of Mind app, which will offer you a simple meditative process that you can do anywhere. Let's boom. Let's make it happen. A timeless presence, a glorious face, an iconic inspiration. This Mahashivratri, bring home Adiyogi's presence. Adiyogi miniatures available at ishalife.com. Ladies and gentlemen, we now draw your attention to the majestic native breed bull, Kala. In the pastoral bulls and cows are an integral part of people's life. देवियों और सज्जनों, अब हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तमिलनाडु की अद्भुत देशी नस्ल के बैल काला की ओर। तमिलनाडु की ग्रामीण संस्कृति में बैल और गायों लोगों की आजीविका का एक अभिन्न हिस्सा हैं। उनके साथ एक गहरा सम्मान और घनिष्ठ संबंध होता है और इसलिए ये शानदार जानवर पालतू जानवरों से कहीं बढ़कर एक कृषि परिवार के सक्रिय और मेहनती सदस्य होते हैं। ईशा योग केंद्र में मौजूद सभी बैल और गाय देशी भारतीय नस्ल के हैं और आज रात हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं काला को। ये हमारे उन प्रयासों का एक हिस्सा है जहां हम इन देशी नस्लों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये नस्लें तेजी से विलुप्त होने के कगार पर हैं। आपने अभी अभी देखा कि सद्गुरु काला को माला पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं। We also have with us on stage tonight farmer members of the farmer. आज रात हमारे साथ मंच पर तमिलनाडु और कर्नाटक के एफपीओ के किसान सदस्य भी मौजूद हैं, जो ईशा आउटरीच के सेव सॉयल फार्मर्स मूवमेंट का हिस्सा हैं। वे सद्गुरु को उनके अग्रणी प्रयासों के लिए अपनी कृतज्ञता अर्पित करने आए हैं। वे इस साल फसल में उपजे फल और प्रतिष्ठित पुरस्कार लाए हैं। हम तमिलनाडु और कर्नाटक से आए बड़ी संख्या में किसानों और उनके परिवार के सदस्यों का भी आभार व्यक्त करते हैं। ये किसान फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओ के सदस्य हैं,
जो ईशा आउटरीच के मार्गदर्शन में स्थापित किए गए हैं। ईशा आउटरीच अभियान, जिसका पहला एफपीओ है वेलेंगिरी उड़वन, जो कि 1 दशक से अधिक समय पहले शुरू किया गया था, तब से लेकर अब तक ईशा आउटरीच का ये फार्मर्स मूवमेंट अभियान हजारों किसानों के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया है। आज 25 एफपीओ को सामूहिक ताकत और पैसे की शक्ति का लाभ उठाने के लिए समर्थन दिया जा रहा है। सन 2021 में भारत सरकार द्वारा ईशा आउटरीच को एक सामुदायिक आधारित व्यावसायिक संगठन के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। सद्गुरु के मार्गदर्शन में स्वयंसेवक किसानों को उद्यमी बनने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और एक बड़े एफपीओ का नेतृत्व और प्रबंधन स्वयं कर सकें। Lifeless people, what's happening? They're the farmers of our country. आप लोगों में लग रहा है जरा भी जिंदगी नहीं है। क्या हुआ? ये हमारे देश के किसान हैं। अगर हमें देश की मिट्टी को फिर से जीवित करना है तो ये हीरो हैं, बस यूं ही चुपचाप बैठे ना रहें। कम ऑन। This land means everything to me. But for many years, it felt impossible to make a living from farming. Middlemen squeezed us on prices, costs were unfairly high, and I was always in debt. Then, thanks to Isha, I found a way. I joined an FPO, an organization formed by hundreds of farmers like me. Together, we have the power of scale and sell our produce at a good price without middlemen. We get discounts on fertilizers and equipment and guidance from agricultural experts. Now, farming is no longer a struggle. My children will stay, not leave to the city looking for work. Farming is a future we can count on. And it's not just me. Isha has helped over 10,000 farmers in 25 FPOs. Ladies and gentlemen, one of the most anticipated aspects of the Mahashivratri celebrations at Isha Yoga is the consecration of Rudraksh. ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि उत्सव के सबसे प्रतीक्षित पहलुओं में से एक है रुद्राक्ष मनकों की प्राण प्रतिष्ठा, जो आदि योगी की उपस्थिति में होती है। सन 2018 से सद्गुरु के मार्गदर्शन में ईशा रुद्राक्ष दीक्षा भेंट कर रही है, ताकि आदि योगी की कृपा सभी के लिए उपलब्ध हो सके। अब तक 1.5 करोड़ से अधिक रुद्राक्ष लोगों को भेंट किए जा चुके हैं, चाहे उनका धर्म, जाति या राष्ट्रीयता कुछ भी हो। रुद्राक्ष का अर्थ है शिव के आंसू। सद्गुरु के शब्दों में रुद्राक्ष दीक्षा लोगों के लिए शिव के आनंद के आंसुओं में भीगने का एक अवसर है। आज रात सद्गुरु 30 लाख रुद्राक्ष मनकों की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जिन्हें रुद्राक्ष दीक्षा के हिस्से के रूप में ईशा युग केंद्र में आगंतुकों को मुफ्त में भेंट किया जाएगा। प्रतिष्ठित रुद्राक्ष माला पहनने से शरीर में मानसिक और शारीरिक संतुलन में सुधार होता है, ध्यान में सहायता मिलती है, आभा शुद्ध होती है और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा मिलती है। आप सद्गुरु ऐप पर उपलब्ध शक्तिशाली रुद्राक्ष दीक्षा साधना का अभ्यास भी कर सकते हैं, जिससे आप आदि योगी कृपा के प्रति अपनी ग्रहणशीलता बढ़ा सकते हैं।
गुरुपादुकाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतालम्रविपततेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ते सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपध्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमाधिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्दराभ्यां स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पाव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतालम्रविपततेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयो कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमः जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नृपालिमौली व्रजरत्नकान्ते सरिद्विराज जशकन्यकाभ्यां नृपध्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकारार्कपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमाधिषट्कप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायाक्षधुरन्दराभ्यां
प्रतपमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदभ्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमर्जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपादिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज चषकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकाराकपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याधिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रे स्थिरभक्तिदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां स्वाचापराणामखिलेष्टताभ्यां स्वाहा सहायश्च दुरन्दराभ्यां स्वान्ताच भावप्रदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां धृतमोक्षताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिताभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावाम्बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानम्रविपत्ततेभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नताययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदभ्याशु दरिद्रवर्याः मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमर्जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कृपादिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज चषकन्यकाभ्यां नृपद्वदाभ्यां नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां पापान्धकाराकपरम्पराभ्यां तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्यां जाड्याधिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां शमादिषड्गप्रदवैभवाभ्यां समाधिदानव्रतदीक्षिताभ्यां रमाधवाङ्घ्रे स्थिरभक्तिदाभ्यां
श्रीगुरुपादुकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रतार नौकायिकाभ्यां गुरुभक्तिदाभ्यां वैराग्यसाम्राज्यदपूजनाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराशिनिशाकराभ्यां दौर्भाग्यदावां बुधमालिकाभ्यां दूरीकृतानां रविपद्धतिभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां जय 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 महादेव जय 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 महादेव शिव शंकर आदि अनंत शिव शंकर आदि अनंत जय 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 महादेव जय 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 महादेव Namaskaram. Well, congratulations to all of you. Congratulations to आप सभी को बधाइयाँ, सभी टीम्स को बधाइयाँ। 15 घंटे के अंदर मिरेकल ऑफ माइंड 10 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं। शायद ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, लेकिन हमारी टीम कह रही है कि ये काफ़ी अच्छा है। खैर, लेकिन हमारा लक्ष्य है 3 अरब। हेलो, क्या आप इसे संभव करेंगे? you have a power. आपके हाथ में एक पावर हाउस है जिसे एक फ़ोन कहते हैं। कई लोगों को लगता है कि ये फ़ोन एक न्यूसेंस है, ये एक समस्या है, ये एक मेंटल इलनेस बनाता है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप इस फ़ोन का इस्तेमाल करें, ये तय करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि धरती पर कोई मेंटल इलनेस बचे ही ना, कोई मानसिक बीमारी बचे ही ना। क्या हम इसे करेंगे? ये एक पावर हाउस है जो आपके हाथ में है। ये इस पे निर्भर करता है कि आप कैसे इसका उपयोग करते हैं। अगर आप सही तरीके से उपयोग करें तो लोगों से संपर्क बनाने का ये साधन एक बहुत ही ज़बरदस्त साधन बन सकता है। अभी मैं चाहता हूँ इस मिरेकल ऑफ माइंड के साथ आप ये संकल्प लें, आप चाहे जहाँ भी हों, अभी आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे टीवी के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, ये संकल्प करें कि आप अपने फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे मानसिक बीमारियों को बचाने में, और अगर हो सके तो उन्हें ठीक करने में। शायद उन्हें ठीक करना हम डॉक्टरों के हाथों में छोड़ सकते हैं, लेकिन उससे बचाव निश्चित रूप से हमारे हाथों में है। और आपका फ़ोन कोई बेकार की चीज़ नहीं है। आपका फ़ोन समस्या का स्रोत नहीं है। आपका फ़ोन समाधान का स्रोत बन सकता है, मानवता के लिए एक समाधान। कृपया इसका उपयोग करें। मानवता के इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी पीढ़ी के पास ऐसा एक मौका था कि आप एक जगह बैठ के पूरी दुनिया से बात कर सकें। ये हमारा समय है इस धरती पर, ये इस धरती पर हमारा समय है, और ये बहुत छोटा समय है। भले ही आप 100 साल जिए, ये बहुत छोटा समय है। ये वैसे बीतना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। जो लोग सो रहे हैं, Our time on the planet.
धरती पर हमारा समय वैसे होना चाहिए जैसा हम चाहते हैं। क्या हम एक स्वस्थ दुनिया चाहते हैं? आइए इसे संभव बनाएं। ये बहुत अच्छी बात है कि 15 घंटों के अंदर हम 10 लाख से ऊपर जा चुके हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य 3 अरब है। मुझे लगता है हमने सोचा था कि हमें 24 महीने लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आप 24 दिनों में कर सकते हैं। आप मुझे संख्याएं बढ़ाकर आश्चर्यचकित कर दें। हेलो, आइए इसे संभव बनाएं। ठीक है, तो हमने ये बात पहले भी कुछ बार कही है कि महाशिवरात्रि का क्या अर्थ है। एक साल के दौरान 13 शिवरात्रियां आती हैं। अमावस्या से पहले की रात, अमावस्या से एक रात पहले की रात को शिवरात्रि कहते हैं। जो लोग आध्यात्मिकता के मार्ग में हैं, उस दिन उनके जीवन में कुछ स्तर की साधना होती है। वो अपने भीतर अपनी दिशा को थोड़ी बदलने की कोशिश करते हैं। ईशा में भी ये एक महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन ये महाशिवरात्रि है। ये फरवरी या मार्च में आती है। ये इन 13 शिवरात्रियों में सबसे शक्तिशाली शिवरात्रि है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि कहते हैं। इसका अर्थ ये है कि इस दिन ग्रहों की परिस्थिति की वजह से, सूर्य और चंद्रमा के साथ हमारे संबंध की वजह से ऐसा होता है कि स्वाभाविक रूप से ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठती हैं। जैसा कि आपको पता है कि धरती बिल्कुल सीधी नहीं घूम रही, ये एक तरह के झुकाव के साथ घूम रही है। तो ये झुकाव, और जब धरती घूमती है तो इससे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनता है, और चूंकि ये थोड़ा झुका हुआ है तो ये जो सबसे ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये भूमध्य रेखा में होने के बजाय 11 डिग्री अक्षांश पे उत्तर और दक्षिण की तरफ होता है। अभी आप यहाँ बैठे हैं वेलेंगिरी पहाड़ों की तलहटी पर। ये पवित्र पर्वत, ये ऊर्जाओं का झरना है जिसने मुझे आकर्षित किया। पूरे जीवन इसने मुझे आकर्षित किया और मैं यहाँ पहुँच गया। और ध्यान लिंग की उपस्थिति और आदि योगी की उपस्थिति में भी हैं आप ठीक 11 डिग्री अक्षांश पर बैठे हुए हैं। तो धरती का घुमाव और आज चंद्रमा की अवस्था ऊर्जाओं को ऊपर की ओर उठाती है। जब ऊर्जाएं हमारे अंदर उठ रही हों तो हमें भी उठना चाहिए। जब हम खुद से नहीं उठते, जब प्रकृति हमारा सहयोग करे, हमें इसे संभव बनाना चाहिए। आपने देखा होगा 1 महीने पहले हर कोई पतंग उड़ा रहा था। मैं भी चिक्कबल्लापुर गया, हमारा जो बेंगलुरु में सदगुरु सन्निधि है, और मैं भी एक पतंग उड़ा रहा था। बस कागज का एक टुकड़ा वैसे उड़ता है जैसा आप चाहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हल्की सी हवा चल रही है। एक कागज के टुकड़े को भी आप जैसे चाहे वैसा उड़ा सकते हैं। अगर हवा मौजूद नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं कि प्राकृतिक शक्तियां ऐसी हैं कि अभी ऊर्जाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप अपने भीतर गति कर सकते हैं। आप जीवन के एक स्तर से दूसरे स्तर पे जा सकते हैं, ये एक संभावना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये रात केवल जागृति की रात रहे। ये आप में से हर एक के चैतन्य जागृति की रात बन जानी चाहिए। चैतन्य जागृति, जागृति, जागृति। आप सभी जो हमें टीवी पर देख रहे हैं, जो कि एक लोगों की बड़ी संख्या है, ये लोग सो नहीं रहे, वो बस थोड़े, उनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। उन्हें मिरेकल ऑफ माइंड चाहिए, उनके दिमाग में थोड़ी चिंगारियां होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, इंसान हो, हर इंसान में ऐसे पल आते हैं जब उनके दिमाग में कुछ चमकता है, धमकता है। कभी कभी उनका जो जीनियस है वो दमकने लगता है। मैं चाहता हूं कि आप समझें कि कभी कभी दिमाग का चमकना ये जानवरों के साथ भी होता है, एक गधे के साथ भी होता है,
लेकिन ये इंसान की प्रकृति नहीं है। इंसान जब चाहे अपने मन में वो चमक पैदा कर सकता है। इसके लिए आपको अपनी बुद्धिमत्ता को एक डायनेमिक मोड में रखना होगा, सक्रिय रखना होगा। बुद्धिमत्ता सो क्यों जाती है या वो जगी हुई क्यों रहती है? ये कुछ ऐसा है। अभी अगर आपको खड़े होके चलना हो तो आप आसानी से चलेंगे, लेकिन अगर हम इस जगह पे घुप अंधेरा कर दें, फिर आप देखेंगे कि आप बिल्कुल सतर्क हो जाएंगे। हर चीज़ सतर्क हो जाएगी, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि अगला कदम कहाँ है। अचानक आप सतर्कता के एक उच्चतर स्तर पे होंगे। आपको अपने जीवन के हर पल में वैसा ही होना होगा। क्या ये तनाव वाला काम नहीं होगा? नहीं। अगर आप अपने भीतर अच्छे से अलाइंड हैं, तो अपने भीतर कितना भी काम अगर आप करें या मानसिक काम करें, वो आपको तनाव नहीं देगा। हो सकता है कि शारीरिक रूप से हम थक जाएं, वो अलग बात है, लेकिन तनाव तब होता है क्योंकि आपके अंदर अलाइनमेंट सही नहीं है। कोई भी मशीन जो ठीक से अलाइंड ना हो, वो बहुत ज़्यादा घर्षण पैदा करती है। घर्षण की वजह से वो बहुत जल्दी टूट जाएगी, उसकी उम्र निश्चित रूप से कम हो जाएगी। आपको ये बात पता है? जो मशीन अच्छे से अलाइंड है, जिसमें पर्याप्त तेल है, वो लगातार चलती रहती है, सहजता से चलती रहती है। जिसका अलाइनमेंट ठीक नहीं है या जिसमें ल्यूब्रिकेशन ना हो, वो तकलीफ पाती है। अब कार्यक्रम स्थल में उपस्थित लोगों के लिए तमिल में अनुवाद किया जाएगा। हम हिंदी अनुवाद कुछ ही मिनटों में फिर से शुरू करेंगे। कृपया हमारे साथ बने रहें। நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நாம் இப்பொழுது உருவாக்கிய மிராக்கிள் ஆஃப் மைண்ட், மனதின் அதிசயம் என்கிற செயலி 15 மணி நேரங்களுக்குள்ளாக 10 லட்சம் பேர்களால் தரவிறக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு மகத்தான சாதனையாக கருதப்படுகின்றது. ஆனாலும் என்னுடைய இலக்கு 300 கோடி பேர்கள் அதனை தரவிறக்கம் செய்ய வேண்டும் என்பதாகும். இது தமிழ்ல இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. தமிழிலும் இந்த செயலி இருக்கிறது. மனதின் அதிசயம் அப்படிங்கிற செயலியை தமிழ்லையும் நீங்கள் தரவிறக்கம் செய்து கொள்ள முடியும். உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய செல்ஃபோன் என்பது உங்களுக்கு ஏதோ தொல்லை தருவதாக, தடையாக, மனநோயை ஏற்படுத்துவதாக நினைக்கிறீர்கள். ஆனால் நீங்கள் நினைச்சால் உங்கள் கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த செல்லிடப்பேசி உங்களுடைய மனநோய்க்கு ஒரு தீர்வாக கூட மாற முடியும். எப்படி பயன்படுத்துகிறோமோ அதற்கேற்ப அதனுடைய தன்மை மாறும். தொலைத்தொடர்பு சாதனம் ஒரு சிக்கலுக்கான தீர்வின் சாதனமாக மாறப்போகிறது. இதை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்கள் தொலைக்காட்சியில் நீங்கள் பார்த்தாலும் சரி, இங்கே நேரே வந்திருந்தாலும் சரி, மனநோய்க்கான ஒரு தடுப்பு முறையாக அதை பயன்படுத்துங்கள். அதை குணமாக்குவது மருத்துவர்கள் கையில் இருக்கலாம், ஆனால் வராமல் தடுக்க உங்களால் முடியும். இந்த எந்த தலைமுறைக்கும் இல்லாத ஒரு சிறப்பு நமக்கு இருக்கிறது. உட்கார்ந்த இடத்திலிருந்து கொண்டு உலகத்தோடு பேசக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கிறது. நாம் விரும்பும் விதமாக இதனை கையாள வேண்டும். மகாசிவராத்திரி என்றால் என்ன என்று ஏற்கனவே பலமுறை சொல்லியிருக்கிறேன். ஒரு வருஷத்தில் 13 சிவராத்திரிகள் உண்டு. அமாவாசைக்கு முந்தைய நாள் சிவராத்திரி. எல்லா சிவராத்திரிகளிலுமே ஆன்மீக பாதையில் இருப்பவர்களுக்கென்று சில சாதனைகள், ஆன்மீக பயிற்சிகள் இருக்கும். ஈஷாவிலும் அது ரொம்ப முக்கியமானது தான். இந்த மாசி மாதத்தில் வரக்கூடிய சிவராத்திரி மிகவும் சக்திமிக்க சிவராத்திரியாக இருப்பதால் இது மகா சிவராத்திரி என்று அழைக்கப்படுகிறது. கோள்களுடைய நிலை, நிலவு, சூரியன் ஆகியவற்றினுடைய கோணங்கள் போன்றவையெல்லாம் ஒரு சாய்கோண சுழற்சியில் இருப்பதனால் ஒரு உந்து விசை ஏற்படுது. அதுவும் இங்கே வெள்ளியங்கிரி மலை அடிவாரத்தில் ஒரு கருணை களஞ்சியமாக இருக்கக்கூடிய வெள்ளியங்கிரி மலை, இதுதான் என்னை ஈர்த்து கொண்டு வந்தது. இது இந்த பகுதியில் தியானலிங்கம் மற்றும் ஆதியோகி முன்னிலையில் மிகச்சரியாக 11 கோண சாய்மானத்தில் நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். எனவே இயல்பாகவே உங்கள் சக்தி நிலை மேல் நோக்கி செல்ல இயற்கை உதவுகிறது. இயற்கை நமக்கு உதவுகிற போது அதை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். ஒரு மாதத்துக்கு முன்னால் பார்த்திருப்பீர்கள், பல பேர் பட்டங்களை பறக்க விட்டு கொண்டிருந்தார்கள். நானும் நம்முடைய பெங்களூருக்கு அருகே இருக்கிற சிக்பலாப்பூரில் நம்முடைய சந்நிதிக்கு சென்றிருந்தேன். அங்கே நான் பட்டத்தை பறக்க விட்டேன். பட்டம்னா என்ன? அது ஒரு காகிதம். காற்று கொஞ்சம் உதவினால் அந்த காகிதம் உங்கள் விருப்பத்திற்கேற்ப பறக்கிறது. ஏனென்றால் இயற்கையினுடைய உதவி இருக்கிறது. அதே போல்
மேல் நோக்கி நீங்கள் வளர்வதற்கு, உள்நிலையில் வளர்வதற்கு இயற்கை இங்கே உதவியாக இருக்கிறது. எனவே இது வெறுமனே விழித்திருக்கும் இரவாக இல்லாமல் விழிப்புணர்வு மிக்க உயிராக இருக்க வேண்டும். எல்லோருக்கும் அவர்களுக்குள்ளே அவர்கள் மேதமை பளிச்சிடக்கூடிய நேரம்னு சிலது இருக்கும். மனிதர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு மட்டும்தான் என்று. எல்லா உயிரினங்களுக்குமே உண்டு. கழுதைக்கு கூட சில வெளிச்சமான நேரங்கள் அந்த மனசுக்குள்ள மூளைக்குள்ள வரும். ஆனால் மனிதன் விரும்புகிற போதெல்லாம் அதை இயக்கக்கூடிய தன்மையில் இருக்க வேண்டும். அறிவு எப்போதும் ஒரு செயல்தன்மையில் வைத்திருக்க வேண்டும். நீங்கள் ரொம்ப இருட்டில் இருக்கிறீர்கள் என்றால் நடந்து போகிற போது உங்களுக்கு அதிக விழிப்புணர்வோடு இருப்பீர்கள். விழுந்து விடக்கூடாது என்கிற எச்சரிக்கையோடு இருப்பீர்கள். அதே விழிப்புணர்வு எல்லா நேரத்திலேயும் இருக்கும் என்று சொன்னால் அது உங்களை எப்பொழுதுமே ஒரு விழித்த அறிவு நிலையிலேயே வைத்திருக்கும். இதனால் அழுத்தம் ஏற்படுமா என்றெல்லாம் சில பேர் நினைக்கலாம். அது ஒரு அழுத்தமும் கிடையாது. உள்நிலையில் ஒரு சமநிலை, சீர்கோண நிலை இருக்கும் என்று சொன்னால் எதுவுமே அழுத்தம் தராது. வேண்டுமானால் உடல் அளவிலே கொஞ்சம் களைப்பு இருக்கலாமே தவிர இதில் மன அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பில்லை. எங்கே உள்ளே சமநிலை இல்லையோ அந்த எந்திரத்தில் ஒரு உராய்வு ஏற்படும். நீங்கள் தொழில்நுட்பத்தில் கூட பார்ப்பீங்க, எந்திரத்துக்குள் எல்லாம் சீராக இல்லை என்றால் சில உராய்வுகள் ஏற்படும். அதன் மூலம் எந்திரம் பழுதடையும். உள்ளே சமத்தன்மையும் சீர்நிலையும் இருந்தால் உராய்வுகள் ஏற்பட வாய்ப்பில்லை. Shiva is known as the destroyer. शिव को विनाशक माना जाता है। वो आपका विनाश नहीं करने वाले हैं, वो उन सीमाओं का विनाश करने वाले हैं जो आपके जीवन को बांधते हैं। तो आज वो दिन है जब आप अपनी सीमाओं का विनाश कर सकते हैं। अगर हम सीमाओं की सूची बनाना शुरू करें तो इसके बारे में बात करने के कई तरीके हैं, लेकिन मूल रूप से दो चीज़ें हैं जो एक इंसान को गंभीर तरीके से सीमित कर देती हैं। दरअसल ज़्यादातर लोगों का जीवन इनके इर्द गिर्द ही प्लान होता है। ये दो चीज़ें हैं, भोजन और नींद। पूरी दुनिया को देखें, मानव समुदायों को देखें और पशुओं को देखें, ये सब कुछ भोजन और नींद के इर्द गिर्द ही डिज़ाइन किए गए हैं। तो आज का दिन आपके लिए मौका है नींद की सीमा को तोड़ने का। हेलो, क्या आज का दिन वो दिन है? I am not denying you food. मैं आपको भोजन से वंचित नहीं रख रहा, केवल नींद से। आज एक सीमा तोड़िए, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि हमारे जीवन की प्रकृति, गुणवत्ता और इसका नतीजा सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि हम कितने जागरूक हैं, कितने सचेतन हैं, या हम कितनी बेहोशी से काम करते हैं। अगर आप इस बात के प्रति जागरूक हैं कि अभी आपका मन कैसे काम करता है, अभी आपके अंदर कैसा विचार चल रहा है, कैसी भावना चल रही है, अगर आप इसके प्रति जागरूक हैं, अगर ये चीज़ें जागरूकता के साथ हो रही होती तो आपने खुद को एक बहुत ही शानदार इंसान बना लिया होता। कभी भी ये ना सोचें कि मैं एक बहुत ही शानदार व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ। आपको वो शानदार व्यक्ति होना चाहिए, और अगर ये होना है तो आपको जागरूक होना होगा। जागरूक होने का अर्थ है अपनी मजबूरियों को किनारे रखना। एक बड़ी मजबूरी है, जब समय आता है आप यूं लुढ़क जाते हैं, नहीं, ये अभी मिट्टी में मिलने का समय नहीं है, ये अभी मिट्टी में मिलने का समय नहीं है। हमें धरती से चाहे जितना भी प्यार हो, हमें उनके ऊपर चलना है, उनके सीने का आनंद लेना है, लेकिन अभी उसके अंदर नहीं जाना है। वो दिन वैसे भी आएगा। अब तमिल अनुवाद, हिंदी अनुवाद कुछ ही मिनटों में फिर शुरू होगा। உங்களுக்குள் இருக்கிற எல்லைகளை அழிக்கிறார். மனித வாழ்க்கையில் எத்தனையோ எல்லைகள் நமக்கென்று குறுகிய எல்லைகளை மனிதர்கள் வகுத்திருக்கிறார்கள். அவற்றில் முக்கியமாக 2 குறுகிய எல்லைகள் உண்டு. ஒன்று உணவு, இன்னொன்று தூக்கம். இந்த 2 எல்லைகளையும் மனிதர்கள் கடக்க வேண்டும். இன்றைக்கு
தூக்கம் என்கிற ஒரு குறுகிய எல்லையை உடைப்பதற்கான நாள். உங்களை இன்று நான் உணவு சாப்பிடாதீர்கள் என்று கூட சொல்லவில்லை. இருக்கிற 2 குறுகிய எல்லைகளில் ஒன்றை உடைக்கச் சொல்கிறேன். இயற்கை, அதன் தன்மை, வாழ்வில் நமக்கு ஏற்படுகிற விளைவுகள், இவை எல்லாமே விழிப்புணர்வை அடிப்படையாக கொண்டவை. உங்கள் மனம் என்ன சொல்கிறது, அதில் என்ன எண்ணங்கள் ஓடுகின்றன, இப்போது என்ன உணர்ச்சிகள் எழுகின்றன என்பது பற்றியெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள். நீங்கள் விழிப்புணர்வின் அடிப்படையிலேயே இந்த எண்ணங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்தால் நீங்கள் மகத்தான ஒரு மனிதராக மாறிவிடுவீர்கள். வாழ்வில் ஒரு மகத்தான மனிதரை சந்திக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது. நீங்கள் அந்த மகத்தான மனிதராக மாற வேண்டும். எனவே உங்களுடைய வசதிகளை தள்ளி வைத்து பழக வேண்டும். தூங்குவது என்பது ஒரு வழக்கமாகிவிட்டது. உரிய நேரம் வந்தால், தூங்குகிற நேரம் வந்தால் தானாக பூமியை நோக்கி சாய்வது என்று ஆகிவிட்டது. பூமி மேல் உங்களுக்கு மிகுந்த பிரியம் இருக்கலாம், பூமி தாய் என்று கொண்டாடலாம். ஆனால் பூமியை நோக்கி போவதற்கான காலம் இன்னும் வரவில்லை. விழிப்புணர்வோடு உங்களை விழிப்பு நிலையிலே இன்றைக்கு வைத்திருக்க வேண்டும். எங்கே தமிழ் ஆள் எல்லாமே தூக்கம், அவ்வளோதானே? As you can see, जैसा कि आप देख सकते हैं, इस साल इस स्टेज का, इस बार का पूरा डेकोरेशन कैलाश का है। पिछले 4 सालों में हमें कैलाश जाने की अनुमति नहीं मिली। पहले कोविड और फिर कुछ राजनीतिक मामले आए। इस साल फिर से वहाँ जाने का रास्ता खुल रहा है। वहाँ फिर से जाना बहुत ही शानदार होगा। लेकिन हम किसी न किसी तरीके से मैनेज करते रहे हैं। वास्तव में कैलाश के बहुत करीब नहीं गए, लेकिन हम दूर से दर्शन लेके उसका आनंद लेते रहे हैं। कैलाश क्यों? कैलाश का क्या महत्व है? जब हम कहते हैं कि आदियोगी शिव कैलाश में रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पहाड़ के ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए, कोई व्यक्ति हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? वो हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में जो योगदान दिया है, उसके लिए हम हज़ारों सालों के बाद भी उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे जीवन में जो योगदान दिया है, जो चीज़ हमें भेंट की है। अगर उन्होंने कुछ भी भेंट नहीं किया होता तो हम उन्हें याद नहीं रखते। हो सकता है कि इस 15,000 सालों में यहाँ अनगिनत लोग रहे हों, लेकिन हम उन्हें याद करते हैं उनके योगदान की वजह से। वो योगदान क्या है? ये 112 तरीके इंसानी अस्तित्व और जीवन के हर पहलू को संबोधित करते हैं। हर तरह की आध्यात्मिक प्रक्रिया, उससे उभरी हर तरह की फिलॉसफी मूल रूप से इन 112 तरीकों की रीढ़ से ही उपजती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इंसानी शारीरिक संरचना पर आधारित है। इसे हमारे मन में बनाया नहीं गया है। इसे बहुत इंसानी तंत्र को बहुत ध्यान से देखकर जाना गया है कि ये तंत्र कैसे काम करता है और हम इसके साथ क्या क्या कर सकते हैं, किन अलग अलग तरीकों से हम इसे ऊपर उठा सकते हैं ताकि एक इंसान एक ईश्वर की तरह जिए। இன்று மேடை முழுவதும் கைலாயத்தினுடைய பாணியில் வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். கடந்த 4 ஆண்டுகளாக கைலாயத்திற்கு போகிற வாய்ப்பை நாம் இழந்துவிட்டோம். கோவிட் பெருந்தொற்று காரணமாகவும் சில அரசியல் காரணங்களாலும் அனுமதிக்கவில்லை. இந்த ஆண்டு கைலாயத்திற்கான அனுமதி எல்லோருக்கும் தரப்படுகிறது. நாம் கைலாயத்தை ஏன் இவ்வளவு பெரிதாக கொண்டாடுகிறோம் என்று பார்க்க வேண்டும். ஆதியோகி கைலாயத்தில் வாழ்கிறார் என்று சொன்னால் ஏதோ அந்த மலை உச்சியில் அவர் அமர்ந்திருக்கிறார் என்று அர்த்தம் இல்லை. வாழ்வில் ஒருவர் ஏன் மதிப்பு மிக்கவராக ஆகிறார் என்று நீங்கள் பார்த்தால், வாழ்க்கைக்கு அவருடைய பங்களிப்பு காரணமாக அவர் மதிப்பு மிக்கவராகிறார். இந்த 15,000க்கும் கூடுதலான ஆண்டுகளில் கோடிக்கணக்கானவர்கள் இங்கே வாழ்ந்திருக்கக்கூடும். அவர்கள் எல்லோரையும் நாம் ஞாபகத்தில் வைத்திருப்பதில்லை. ஆனால் ஆதியோகி நம்முடைய நினைவில் இருக்கிறார் என்றால், அவர் வழங்கிய இந்த 112 யோக முறைகள்
வாழ்வின் எல்லா அம்சங்களையும் தனக்குள் உள்ளடக்கியவையாக இருக்கின்றன. உடல் அளவிலான அசைவுகளில் தொடங்கி பெரும் பெரும் தத்துவங்கள் வரை அனைத்தும் உருவானதற்கான மூல முதுகெலும்பாக ஆதியோகி விளங்குகிறார். அது முழுக்க முழுக்க மனித தன்மையின் இயல்புகளையும் நுட்பங்களையும் உணர்ந்து உருவாக்கப்பட்டது. ஏதோ வீண் கற்பனையில் எழுந்தவை அல்ல. மனிதர்களை எப்படி மேம்படுத்துவது, அவர்களை எப்படி உயர்ந்த நிலை நோக்கி அழைத்துச் செல்வது, மனித உலகிலேயே எப்படி கடவுள் போல வாழ்வது என்பதை காட்டுகிற நுட்பங்களை ஆதியோகி நமக்கு அருளினார். These 112 ways, ये 112 तरीके आदियोगी ने सप्तऋषियों को, आज जिन्हें हम सम्मान के साथ सप्तऋषि कहते हैं, उन 7 शिष्यों को आदियोगी ने 112 तरीके सिखाए। और देवी पार्वती वहाँ मौजूद थीं। उन्होंने, वो साक्षी थीं और उन्होंने एक सवाल उठाया कि सिर्फ 112 तरीके क्यों, और भी तरीके होंगे। वो एक महिला है, उन्हें वैरायटी पसंद है और वो उनकी पत्नी भी हैं, तो वो जो चाहें वो कह सकती हैं। क्यों महिलाएं? what? क्या? But लेकिन शिव एक बहुत ही तीव्र अवस्था में थे। वो संचरण करने की कोशिश कर रहे थे इन 7 संतों को। और जब पार्वती ने कहा कि और भी तरीके होंगे, निश्चित रूप से होंगे, आदियोगी ने बस उनकी बात को खारिज कर दिया और कहा 112 से ज़्यादा तरीके नहीं हैं। पार्वती को थोड़ा अपमानित महसूस हुआ और वो जंगलों के अंदर चली गईं और उन्होंने बहुत तीव्र साधना की, बहुत तीव्र तपस्या की। और कुछ महीनों के बाद वो वापस आईं और वो अभी भी, आदियोगी अभी भी 7 शिष्यों के साथ काम कर रहे थे। वो आईं और उनकी पत्नी होने के नाते वो उनके बाजू में बैठ सकती थीं, लेकिन वो एक सीढ़ी नीचे बैठीं, ये दर्शाने के लिए कि वो फेल हो गई थीं। लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इन 7 लोगों को ये पता चले, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस वो नीचे बैठ गईं। और आदियोगी को बात समझ आ गई और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप इस शरीर की सीमाओं के अंदर हैं तो सिर्फ 112 तरीके ही हैं, लेकिन अगर आप इससे बाहर निकलते हैं, अगर आप अपने शारीरिक रूप में बंधे हुए नहीं हैं, इससे बाहर निकलते हैं, फिर इस सृष्टि में उतने दरवाजे हैं जितने इस सृष्टि में परमाणु हैं, यानी कि अरबों खरबों दरवाजे हैं। तो ये घटना हुई कैलाश के इर्द गिर्द, और ये जगह बहुत ही पवित्र है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि आपको ऐसा विश्वास है, वो बस शक्ति और ज्ञान से पूरी तरह से सराबोर है। अगर आपके अंदर ज़रूरी ग्रहणशीलता है, अगर आप थोड़ी साधना करके वहाँ जाते हैं, तो ये सबसे शक्तिशाली संभावना है जो एक जगह आपके लिए पैदा कर सकता है। कोई शिक्षा नहीं, बस वहाँ होना आपके अंदर विस्फोट कर सकता है। ये बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है। मैं पहली बार वहाँ केवल रुचि की वजह से गया था और मुझे उसका एडिक्शन हो गया। मैं जाता रहा। चीनी सरकार ने पिछले 4 सालों में मेरा एडिक्शन तोड़ दिया, लेकिन एक बार फिर वो मुझे मौका दे रहे हैं कि मैं वहाँ जाऊँ और एक प्याला पीऊँ। சப்த ரிஷிகள் என அழைக்கப்படும் தன்னுடைய 7 சீடர்களுக்கு ஆதியோகி வழங்கி கொண்டிருந்தார். அருகில் அவருடைய துணைவி தேவி பார்வதி ஒரு சாட்சியாக அமர்ந்திருந்தார். அவர் ஆதியோகியை பார்த்து, ஏன் வெறும் 112 முறைகள், இன்னும் அதிகமான வழிகள் இருக்குமே என்று கேட்க, தீவிரமாக அந்த போதனையில் அந்த தன்மையை வழங்குவதில் ஈடுபட்டிருந்த ஆதியோகி 112க்கு மேல் அதற்கு வேறு வழிகள் கிடையாது என்று அப்பட்டமாக மறுத்துவிட்டார். சற்றே அவமானப்பட்டது போல் உணர்ந்த பார்வதி கானகத்திற்கு சென்றார். மிக தீவிரமான சாதனைகளை மேற்கொண்டு நிஷ்டை நியமங்களிலே ஈடுபட்டார். சில மாதங்களுக்கு பிறகு திரும்பி வந்தார். அப்போதும் ஆதியோகி
தன்னில் இருக்கிற ஞானத்தை தன்னுடைய 7 சீடர்களுக்கு வழங்குவதிலே ரொம்ப மும்முரமாக இருந்தார். அங்கே வந்த பார்வதி ஆதியோகிக்கு அருகே அமராமல் ஒரு படி கீழே அமர்ந்தார். அதாவது தான் தோற்றுவிட்டதை மறைமுகமாக உணர்த்துவது போல, சப்தரிஷிகளுக்கு தெரியாமல் ஆதியோகிக்கு மட்டும் உணர்த்துவது போல அமர்ந்தார். ஆதியோகிக்கு அது புரிந்தது. அப்போது அவர் சொன்னார், உடல் என்கிற எல்லைக்குள் இருக்கிற வரையில் 112 முறைகள்தான் சாத்தியம். ஆனால் உடல் என்கிற எல்லையை தாண்டி விட்டால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் எத்தனை அணுக்கள் இருக்குமோ அத்தனை வழிகள் சாத்தியம், பல கோடிக்கணக்கான வழிகள் அதற்கென்று திறக்கும் என்று சொன்னார். கைலாயத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அது நடந்தது. சக்தி நிலையில் அது மிக அற்புதமான இடம். நீங்கள் போதிய ஏற்கும் தன்மையோடு போதிய சாதனைகளோடு அங்கே போவீர்களேயானால் அந்த வெளியே உங்களுக்கு பல அற்புதமான மகத்துவங்களை உணர்த்த முடியும். ஒரு போதனையாகவோ ஒரு பயிற்சியாகவோ இல்லாமல் வெறுமனே அந்த வெளி அத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியும். நான் முதல் முறை அங்கே ஒரு ஆர்வத்திலே போனேன். அதன் பின் அது மிகவும் ஈடுபட்டு பல முறை சென்றேன். இப்பொழுது மீண்டும் அதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது. Whether life is a curse, जीवन एक आशीर्वाद होगा या एक श्राप होगा, ये केवल इस पर निर्भर करता है कि आपका मन आपसे निर्देश लेता है या नहीं लेता। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आप अपनी आंखें बंद करें, क्या आप एक समुद्र के बारे में सोच सकते हैं? मुझे कैसे पता चलेगा? can you visualize? क्या आप अपने मन में आंखें बंद करके एक समुद्र की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप शेर की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप एक चींटी की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप एक पर्वत की कल्पना कर सकते हैं? आपका मन बहुत शानदार है। आप इसे एक स्वर्ग जैसा क्यों नहीं बना सकते फिर? हेलो, आपको क्या रोक रहा है? सिर्फ एक ही चीज आपको रोक रही है, और वो ये है कि अपने मन को एक जागरूकता भरे रिस्पॉन्स में रखने के बजाय आपने उसे एक मजबूरी भरे रिएक्शन में के रूप में रखा है। कोई और तय कर सकता है कि आपके मन में क्या होना चाहिए। ये कितना बड़ा अपमान है। क्या ये सबसे बुरी गुलामी नहीं है कि कोई और ये तय कर सकता है कि आपके मन में क्या हो सकता है? हो सकता है कि कोई और ये तय करे कि आपके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन किसी और को ये नहीं तय करना चाहिए कि आपके अंदर क्या हो रहा है। तो अगर ये एक चीज आप करें कि आप एक मजबूरी भरे रिएक्शन होने के बजाय एक जागरूकता भरे रिस्पॉन्स बन जाएं अपने जीवन के हर पल में। अरे लेकिन मैं कैसा करूं, जब वो कोई कुछ ऐसा करता है तो मैं उनके साथ ऐसा करना चाहता हूं। नहीं नहीं, आप किसी साधन का प्रयोग कर सकते हैं। चूंकि आज महाशिवरात्रि है, मैं आपको ये बता रहा हूं, करने के कई दूसरे तरीके भी हैं, लेकिन आज महाशिवरात्रि है। अभी कोई आपसे कुछ कहता है, चाहे वो कुछ भी कहें, अच्छा या बुरा, बस अपने मन में आप कहिए शिव शंभो। आप किसी भगवान को नहीं बुला रहे, आप बस खुद को पर्याप्त समय दे रहे हैं ताकि आप जागरूकता के साथ रिस्पॉन्ड करें, बजाय मजबूरन भरी प्रतिक्रिया करने के। अगर आप जागरूकता के साथ रिस्पॉन्स करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो होगा। अगर आप मजबूरी भरी रिएक्शन करते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति चाहता है वो होगा। तो ये चुनाव है। மனம் நீங்கள் சொல்வதை கேட்கிறதா இல்லையா என்பதை பொறுத்து இருக்கிறது. உங்களை நான் கேட்கிறேன், கண்களை மூடினால் உங்களால் ஒரு கடலை கற்பனை செய்ய முடிகிறதா? ஒரு புலியை கற்பனை செய்ய முடிகிறதா? ஒரு எறும்பை, ஒரு மலையை? முடிகிறது என்றால் அது மிகவும் அற்புதமான விஷயம். நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையை இதன் மூலம் சொர்க்கமாகவே மாற்றிவிட முடியும். ஆனால் உங்கள் வாழ்க்கை சொர்க்கமாக மாறுவதை எது தடுக்கிறது தெரியுமா? எதையும் விழிப்புணர்வோடு அதற்கு பதில் சொல்வதை விட நிர்பந்தம் காரணமாக எதிர்வினை ஆற்றுகிறீர்கள்.
நிர்பந்தத்தால் நீங்கள் எதிர்வினையாற்றத் தொடங்கிவிட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்குள் என்ன நடக்க வேண்டும் என்பதை வேறு யார் வேண்டுமானாலும் தீர்மானிக்க முடியும். பிறருடைய செயலால் ஒரு பாதிப்பு என்பது உங்களை சுற்றி நடக்கலாம், ஆனால் அது உங்களுக்குள் நடக்கக்கூடாது. அதற்கு என்ன வழி என்றால், நீங்கள் நிர்பந்தம் சார்ந்து எதிர்வினையாற்றுவதை நிறுத்த வேண்டும். விழிப்பு நிலையில் எதையும் எதிர்கொள்ள பழக வேண்டும். உதாரணமாக, இன்றைக்கு மகா சிவராத்திரி, இப்பொழுது இங்கே இருக்கிறீர்கள், யாரோ எதுவோ சொல்லுகிறார்கள் என்று வைத்துக்கொள்ளுங்கள். நீங்கள் உடனே பதில் சொல்லாமல் சிவசம்போ என்று சொல்லுகிறீர்கள். சிவசம்போ என்று நீங்கள் சொல்வதன் மூலம் ஏதோ ஒரு கடவுளை அழைக்கிறீர்கள் என்று பொருள் அல்ல. உங்களுக்கு நீங்களே நேரம் கொடுக்கிறீர்கள். எதற்கு நேரம் கொடுக்கிறீர்கள்? அந்த சூழலை விழிப்புணர்வோடு எதிர்கொள்வதற்கு நேரம் கொடுக்கிறீர்கள். அப்படி விழிப்புணர்வோடு ஒன்றை எதிர்கொள்ள பழகிவிருப்பீர்களேயானால் உங்கள் வாழ்க்கையில் பல விதமான நல்ல மாற்றங்களை உங்களால் காண முடியும். About how you respond to the outside. बात केवल ये नहीं है कि आप बाहरी परिस्थितियों के प्रति कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, अपने भीतर भी आप किस तरह के विचार पैदा करते हैं, किस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं, अपने भीतर किस तरह के अनुभव पैदा करते हैं. आप अगर बस थोड़ा सा समय दें और इसे जागरूकता के साथ बनाएं तो आप अपने भीतर एक चमत्कार बन जाएंगे. இது வெளியில் என்று மட்டுமல்ல, உங்களுக்குள்ளேயே கூட உங்களுக்குள் என்ன விதமான எண்ணம் ஏற்படுகிறது, என்ன மாதிரியான உணர்ச்சி ஓடுகிறது, என்ன அனுபவம் உங்களுக்குள் நிகழ்கிறது என்பதையெல்லாம் விழிப்புணர்வோடு நீங்கள் பரிசீலிக்க தயாராகிவிட்டீர்கள் என்றால் நீங்கள் ஒரு அற்புதமான மனிதராக மலர்வீர்கள். Mind is a terrible master, but a fantastic slave. मन एक बहुत ही बुरा मालिक है लेकिन बहुत ही शानदार गुलाम है. यह आपके ऊपर है कि आप उसे कैसे रखते हैं. अगर आप मन को अनुमति देते हैं कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए, तो चूंकि वो डेटा पर आधारित है, उसमें कोई भी नई संभावनाएं नहीं होती. और अब हर वो चीज़ जो आप इकट्ठी करते हैं एक डेटा के रूप में, उसे प्रोसेस करते हैं और उसे अभिव्यक्त करते हैं. अब एक सरल सी मशीन आपसे लाखों गुना बेहतर काम कर सकती है. तो अब समय आ गया है कि आप एक बेहोशी भरी डेटा प्रोसेसिंग वाले जीवन से बदलकर एक जागरूकता भरा रिस्पॉन्स बन जाएं. ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले 15 सालों में आप किसी काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि ये मशीनें आप हर वो काम जिसे बहुत गर्व के साथ करते हैं, ये मशीनें वो सारा काम आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगी. நீங்கள் முழு சுதந்திரம் கொடுத்து விட்டால் அதன் செயல்பாடுகள் கொடுமையாக இருக்கும். ஏனென்றால் அது வெறுமனே தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு இயங்குகிறது. என்னென்ன தரவுகளை சேர்த்திருக்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் இயங்குகிறதே தவிர புதிய வாய்ப்புகள் கிடையாது.